Hello everyone, welcome back to the second lecture of the CSET crash course, and the topic that we are discussing is number system. So in our previous lecture we have already discussed why we have chosen only this topic, the number system, and the reason was because it is having the highest weightage in the CSET exams, and we have seen the amount of weightage it takes, that is approximately 45%. Also, we have seen it on the basis of how many questions are asked in each exam. We have already discussed all these detailed analysis in our previous video. Now we were discussing like what are the topics that we are going to discuss under this CSET crash course number system topic. So we have already discussed this classification of numbers. Now today we are going to discuss these three topics: the divisibility rules, the factors and multiples, and highest power dividing a factorial. So let's begin. The first one is divisibility rules. So we have been often asked like suppose a number is given, check whether it is divisible by 2 or not. तो कोई भी number हो, so if we are to check divisibility by 2, तो divisibility by 2 check करने का सबसे simplest rule क्या है? Simple सा कि the number should be even. तो even that means last digit should be 0, 2, 4, 6, 8. अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट 0, 4 और 6, 8 है, then that number is divisible by 4. And सबसे simplest rule है इसका divisibility by 2 का. Next is if we are going to talk about divisibility by 3. तो divisibility by 3 का क्या है कि sum of digits should be divisible by 3. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. सपोज 27 सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 9 इज डिविजिबल बाय 3. यस. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मे बी 3 का सम कितना है? 9 इज अगेन डिविजिबल बाय 3. The last two digits should be divisible by 4. अब डिविजिबल बाय 4 होने के लिए एक और कंडीशन ये हो गई कि अगर लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 हैं, दैट मींस द लास्ट डिजिट बी इवन, क्योंकि तभी हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, सो लेट अस चेक. यहाँ पे क्या एक हम चेक कर लेते हैं. 44. यस, इट इज डिविजिबल बाय 4. कोई भी नंबर ले लो आप. 5, 44. द लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4. सो द नंबर चेक कर लेते हैं. 4 से डिवाइड करके कितना आएगा? 4 1 जा 4, 14, 4 3 जा 12, 2 4 8, 24, 4 8 जा, सॉरी 4 6 जा 24. तो दिस इज डिविजिबल बाय 4. तो कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 हैं, देन दैट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट इज divisibility by 5. Even simpler than divisibility by 2. Last digit should be 5 और 0, क्योंकि अगर 0 है that means that is divisible by 10, और 10 से divisible है that means that is divisible by 5, और लास्ट डिजिट तो वो तो डिवाइड होगा ही होगा. ओके, सो वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 6. डिविजिबिलिटी बाय 6 कैसे चेक करेंगे? दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 दोनों. अब इन दोनों के जो भी रूल्स हो उनको लगा लो. 2 का क्या है? नंबर शुड बी इवन. 3 का क्या है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3. अगर कोई भी नंबर है जो इन दोनों
कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 7. तो डिविजिबिलिटी बाय 7 का क्या रूल है? ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट when subtracted from the number remained after removing last digit should be divisible by डिविजिबल बाय 7. एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. एग्जांपल क्या है? द एग्जांपल इज मे बी 343. 343 को अगर देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है 3, तो 34 माइनस 3 and it is going to be 32 minus 6 and it's going to be 28. 28 is divisible by 4. Yes, अगर ये divisible है that means 343 is also divisible by 7. So that is the divisibility rule holds for every number. Next is we have talked about 7. Next is divisibility by the last 3 digits should be divisible by 8. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है. सो सपोज वी आर टेकिंग अ नंबर 864, तो इसके लास्ट 3 डिजिट से ही है, डिवाइड करके देख लो. 8 1 जा 8 0, 8 8 जा 1 0 8, 8 टाइम्स तो है. लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करेंगे. इफ इट इज डिविजिबल बाय 8 दैट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 8. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 9. Same sum of digits should be divisible by 9. एक नंबर ले लेते हैं 729. इसको देखो 7 + 2 + 9 कितना हो गया 18. इट इज डिविजिबल बाय 9. इसको 9 से डिवाइड करके देख लो. 9 8 जा 72, 9 1 जा 81. ठीक है. 9 का क्यूब भी होता है ये. इट्स अनदर मैटर. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10. सिंपल, लास्ट डिजिट शुड बी 0. कोई भी एग्जांपल ले लो, 100, 1000, 10,000, कुछ भी ले लो, लास्ट डिजिट 0 है, दैट इज व्हाई इट इज डिविजिबल बाय 10. Next is divisibility by 11. तो divisibility by 11 का क्या रूल है? Sum of digits on even positions minus sum of digits on odd positions ये आइदर इनका डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0 और समथिंग डिवाइडेड बाय 11. अगर ये है देन इट होल्ड्स ट्रू. ओके. सो एक नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं 1 2 1. तो देखो इसका 1 2 1 का सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन पोजीशंस क्या है 2. ऑड पोजीशंस का क्या है 2. तो 2 - 2 क्या हो गया 0. और ये देखो 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर. It is divisible by 11. Next is divisibility by 12.
ऑल्दो इट इज नॉट नीडेड, बट 12 का सेम है वही 3 and 4, इन दोनों के रूल्स लगा दो, अगर है देन इट्स ओके, नहीं है तो नहीं है। 13, 14, 15, these are not much important for this exam point of view. Okay, there is one more number that I have to discuss, and that is 111. 111 is divisible by 37 and 3। इस नंबर पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रख लो।
इज अ मल्टीपल। तो मैंने बोला कि अगर 6 है तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 है, 3 है, 1 है और 6 है। फैक्टर्स आर ऑल दोज नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड दैट नंबर। ऑन द अदर हैंड मल्टीपल क्या होगा, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल क्या होगा किसी भी नंबर का, वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे कि मैंने बोला 12 किसका मल्टीपल है, ये भी 3 का है। तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, 6, 12, 18, कुछ भी हो सकते हैं। जो भी नंबर 3 से डिविजिबल होंगे वो सारे मल्टीपल्स हैं। सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमें मेनली तो यही बात करनी थी कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसके बाद में एक चीज और जो हमें डिस्कस करनी थी वो ये है कि जैसे मान लो 4, 6, 12, तो कैसे कैलकुलेट करते हो, पहले क्या करो, यहां से 1 से डिवाइड करो, 1 तो रहेगा ही। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करो, 2 अगर है ठीक है। अगर 2 मिल गया है नेक्स्ट 3 से करो, 4 से करो। अब देखो 2 से जैसे ही करोगे तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 से डिवाइड करने के बाद 6 ऑटोमेटिक बन जाएगा। 3 से करोगे तो 4 बन जाएगा। ओके, और फिर देखो 4 से किया तो 3 आ गया, तो उससे हमें लेना ना। 1 से करोगे तो वही नंबर मिल जाएगा। तो ये फैक्टर्स जो है ना ये रहते हैं हमारे पेज में। ओके, next we have to talk about is one more thing is the number of factors. Okay, so number of factors. तो अगर कोई नंबर है जिसके मान लो 2 की पावर p इंटू, अगर ये है इस टाइप से वो नंबर लिखा है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और एक बार हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पे बात करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो देखो 2, 3, 5 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इसके फैक्टर्स कितना होगा, 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1। और ये कितना बन गया, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 4, ये कितना हो गया, चलो 16 48, कितने होगा 48 इसके फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। अब देखो ये इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि नंबर है हमारा 6 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 17 इंटू 11 की पावर 27। देखो ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, तो इसको प्राइम के फॉर्म में लिख लेंगे। ये क्या हो गया 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। तो देखो इसके कितने बन गए, 10 प्लस 1 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 28। ये मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा वही इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ओके, दिस वाज the topic that we have to discuss in this factors and multiples. Next is we have to discuss one more type of problems that we generally see in the exam, and that is highest power dividing a factorial. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्टोरियल की। इज अ फैक्टोरियल, इसको एक्सक्लेमेशन के साइन से रिप्रेजेंट भी करते हैं। सो सपोज आई एम सेइंग दैट अ नंबर n इज गिवन, सो हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ n। तो n फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ये कहां तक जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अपोजिट में भी लिख सकते हैं कि 1 से शुरू करो, मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 3 इंटू और कहां तक ले जाओ n तक, दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, तो जब भी हमें फैक्टोरियल की जाएगी तो फैक्टोरियल यहाँ पे एक चीज और हमें बात करनी है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे किया जाता है। तो x, सपोज मैंने बोला 2.5, तो
it tells the highest integer that we can get smaller than this number. So क्या होगा 2. मैंने बोला 3.5, क्या होगा 3. So जब भी बात होगी तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे. क्यों इसकी बात की? So let's say we have to calculate highest power of a number in a factorial. सपोज हमें बताया गया कि n फैक्टोरियल में हमें p की हाईएस्ट पावर बताओ, तो कैसे निकालेंगे? n अपॉन p प्लस n अपॉन p स्क्वायर n अपॉन p क्यूब n अपॉन p की पावर 4. और ये कब तक जाएगा? जब तक कि ये 0 ना बन जाए. एंड दिस इज माय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी जैसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे. सो लेट्स जंप ऑन टू अवर क्वेश्चन डायरेक्टली. क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स 20 फैक्टोरियल कंप्लीटली. तो n क्या है हमारा 20. तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 p क्या है 2. तो क्या कैसे कैलकुलेट होगा? 20 अपॉन 2 प्लस 20 अपॉन 4 प्लस 20 अपॉन 8 प्लस 20 अपॉन 16 प्लस 20 अपॉन 32. अब देखो ये जैसे ही करोगे इससे जो भी बड़ी पावर्स होंगी वो सब जीरो आएंगी. यहां तक की बात कर लेते हैं. ये क्या होगा? 20 अपॉन 16 1 पॉइंट समथिंग बना, बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये क्या बच गया 1. 8 अपॉन 20 कितना बच गया? 8 2 16. 4 अपॉन 20 कितना बच गया? 5. 2 upon 20 कितना बच गया? 10. तो 10 5 15 2 17 and 1 18. तो 2 की पावर 18 ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा 20 फैक्टोरियल को. नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 दैट डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल कंप्लीटली. तो अगेन n इज 100, p इज 5. कैलकुलेट कर लेते हैं. 100 अपॉन 5 100 अपॉन 25 100 अपॉन 125. इसके आगे लिखने का कोई पॉइंट नहीं है. ये 0 बन गया, ये 4 और ये 20 है तो प्लस 4 कितना हो गया? 24. सो 5 की पावर 24 विल कंप्लीटली डिवाइड 100 फैक्टोरियल. ये सिंपल इसका मीनिंग है. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट. अब चलो इसकी बात कर लेते हैं. तो एक जीरोस बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? 10. 10 कब बनता है? 2 into 5. तो जब भी हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू चेक द पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 5, और दोनों में से जो मिनिमम पावर होगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें मिनिमम ये तो चाहिए ही ना, एक 2 और एक 5. तो देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 5 into 10 को लिख सकते हो 2 into 5, 15 को लिख सकते हो 5 into 3, 20 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 4 into 5, 25 को लिख सकते हो 5 into 5, 30 को लिख सकते हो 2 into 3 into 5, 35 को लिख सकते हो 5 into 7, 40 को लिख सकते हो 8 5 तो 2 to the power 3 into 5, 45 को लिख सकते हो 9 into 5 that is 3 का स्क्वायर into 5. अब देखो 3 से हमें कोई लेना देना नहीं, हम 2 की पावर्स पे बात करेंगे. तो 2 की पावर 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7. तो 2 की पावर 7 into 5 की बात कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 की पावर कुछ भी हो, 7 की पावर कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं. सो व्हाट इज माय नंबर ऑफ जीरोस इन दोनों की पावर्स में जो मिनिमम हो? 7. सो 7 इज माय आंसर हियर. लेट्स जंप ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is how many zeros are there at the end of the number 100 factorial plus 200 factorial. अब देखो 100 फैक्टोरियल को हमें कैलकुलेट करना है. तो एक चीज तो क्लियर है कि 100 का फैक्टोरियल जो होगा उसमें 2 की पावर्स बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि उसमें 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, 32 भी है, और ये सारी की पावर्स बना दी है. तो 2 की पावर्स आर मच हायर देन द पावर्स ऑफ 5. ठीक है.
तो हमें मिनिमम दोनों में से अगर 0 देखना है तो हम किसकी देखेंगे, पावर्स ऑफ 5। ठीक है, अब एक चीज और, 100 का फैक्टोरियल ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको 100 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 बचा प्लस, अब देखो ये इसमें से हमने 100 फैक्टोरियल निकाल लिया है तो क्या बचा, 100 इंटू 102 इंटू, और ये कहां तक जाएगा, 200 तक। अब मुझे नहीं पता इसकी क्या वैल्यू होगी, ये कुछ भी हो सकता है, इसमें कितने भी जीरो है मुझे कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो वो जीरो नहीं बना रहा है। This number is making something a number which is not having a last digit as 0। ठीक है, तो हमें सिंपली ये देखना है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। तो कैसे कर सकते हैं, पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 5, पावर्स ऑफ 2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा है। पावर्स ऑफ 5 हम देख लेते हैं, 100 फैक्टोरियल में पावर ऑफ 5 कैसे चेक करेंगे, अभी हमने किया था, आई गेस 24 आया था, वही आएगा। ये तो 0 हो गया, ये बच गया 4, ये बच गया 20 और ये आ गया 24। सो 24 इज माई आंसर। एक बार 2 की पावर्स भी चेक करनी है तो कर लेते हैं, 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 4, 100 अपॉन कितना हो गया 8, 100 अपॉन 16, 100 अपॉन 32, 100 अपॉन 64। इन सबका GIF ले लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो 100 अपॉन 2 करोगे 50 पावर्स तो हमारी यहीं से आ गई, तो विच इज मच मोर देन 24। सो ऐसे में हमने पावर्स ऑफ 5 ही चेक करते हैं। दिस वाज द टॉपिक्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। In the next class we will be discussing the topics, these topics, let me tell you, this one, HCF, LCM and the remainder theorem and last digit and cyclicity. We will discuss these topics in the next class, but till then we also want to look at PYQs कि ऐसा तो नहीं हम जो questions पढ़ रहे हैं those are away from the PYQs. So on the based on these topics, let's see, these are the PYQs. Also, you can get the solution of these PYQs on our one question series. We are continuously uploading the answers of these questions on our one question series, okay, that we are running parallelly. So suppose this is question, for any choices of values of x, y, z, the 6-digit number of the form is divisible by, तो x, y, z, x, y, z, तो ये नंबर में हमने डिविजिबिलिटी चेक कर ली थी 11 की। 11 में देखो इवन और ऑड डिजिट का सम 0 आया तो ये 11 से डिविजिबल है। एक नंबर हमने ले लिया 1 2 3 1 2 3, इसको डिवाइड करके देख लो, 7 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, एंड सो इट इज डिविजिबल बाय ऑल द 3। रियल आंसर वन क्वेश्चन सीरीज। दिस वन इज नंबर 136 इज एडेड टू 5b7, तो ऐसे ऐड करके देख लिया एंड यू विल गेट द आंसर दैट्स 8। यू कैन ट्राई टू डू दिस, इफ यू वांट द सॉल्यूशन गो टू वन क्वेश्चन सीरीज सिमिलर टू दिस वन। नेक्स्ट इज दिस वन, ये क्वेश्चन एक देखो 1 1 1 का मैंने बताया था ना, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स वाई जेड को 100x प्लस 10y प्लस जेड, इन तीनों को लिखा, इनको ऐड किया तो यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन आया, क्या बच गया 111, एंड 111 आई टोल्ड यू दैट इट इज डिविजिबल बाय 37 and सी दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2020। ठीक है, तो 9 से ये नहीं डिविजिबल होगा। लीव्स अ रिमाइंडर वाला एलसीएम का क्वेश्चन है, वेरी इजी। दिस वन इज आल्सो इजी। देखो 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से होगा ही होगा, बट नॉट नेसेसरली 4 से हो। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस one I haven't discussed till now, but I'll upload this the answer of this on our one question series. Next is this one कि इसका रेपिटेशन डिजिट से कुछ कुछ परम्यूटेशन बना के है, इनका सम ऑफ डिजिट्स ये आया था, इसको चेक कर लो, 74 से डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है, सो बोथ 1 and 2 आंसर। Similarly this one was a bit lengthy question, but if you want to go to the solution, go to one series, you'll get the solution there. Next is this one is also very easy LCM based question, and this we have already discussed in our one question series previously. Let me tell you, suppose each digit of a 9-digit number is 1, so 1 1 1 1 1 कितना हो गया 3 3 6 7 8 9, और ये खुद से ही मल्टीप्लाइड है,
तो इसको बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अगेन रिपीटिशन 8 7 6 5 4 3 2 1। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर? तो इसको तो देखो सीधा यहाँ से 1 से लेके 9 तक का सम है, तो 9 से लेके 1 से लेके 9 तक का सम क्या होगा? 9 इंटू 10/2, ये हो गया 45, और यहाँ से ये 8 इंटू 9/2 36। तो 45 और 36 कितना हो गया? 81, एंड 81 इज माय आंसर। ये मैंने करके अभी भी दिखा दिया। We have already solved it in our one question series. Similarly, this is a question that we have discussed in our maybe in our practice question, similar type of question. So it's very easy. And thank you. We will meet again in the next class. The next lecture is going to be based upon LCM HCF and the cyclicity of numbers. Thank you. We will meet again. I hope you guys understood.